Children, here we are going to study about gasohol. Gasohol is an alternative fuel and it consists of 90% gasoline and 10% anhydrous ethanol. This gasohol can be used in heavy and light duty vehicles. Now, anhydrous ethanol means the ethanol in which water is not present. So, this gasohol can be used in heavy and light duty vehicles. The ethanol which is used here is typically produced from fermentation of agricultural products. Now, what are the advantages of gasohol? This gasohol is very cheap and it is a low emission fuel. Low emission fuel means it does not emit harmful gases, and this gasohol also gives high performance. Now, moving on to CNG. CNG is compressed natural gas. It is made by compressing natural gas, and this natural gas mainly contains methane. This methane is stored at high pressure and it is distributed in cylinders. This CNG can be used in place of gasoline like petrol, diesel and LPG. It can be used in vehicles as it reduces the emission of carbon dioxide and hydrocarbons, etc. It is methane stored at high pressure. Now, what are the advantages of CNG? CNG is cheaper than gasoline. It is more efficient, it is less polluting and it burns completely. Let's see the disadvantages. It is a non-renewable resource. CNG gives less mileage. It needs more space for cylinders, and probability of accidents related to catching fire, it increases if there is a leakage in the cylinder. CNG is not available in all the cities, and filling stations also have limited availability. Now, moving on to the next fuel, that is hydrogen. Hydrogen is considered as an alternative fuel since it can be made safely from renewable energy sources. Hydrogen can serve as a fuel for internal combustion engines. Now, what are the advantages of using hydrogen as a fuel? It is also environment friendly and it does not produce any harmful emissions. It is more efficient as it produces more energy. Hydrogen can be produced domestically from several sources and it is readily available as it is a basic earth element and it is abundant. Now, disadvantages. The vehicles which use hydrogen gas as a fuel are very expensive and hydrogen is very difficult to store. It is highly inflammable, it burns, and hydrogen filling stations are available only at limited locations. Let us revise quickly what I have explained you here in this video. मैंने आपको बताया कि गैसोहॉल एक फ्यूल है जो हमें बायोमास से मिलता है. इस फ्यूल में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. एक 90% गैसोलीन प्रेजेंट होगा और 10% एनहाइड्रस इथेनॉल. नाउ इथेनॉल मीन्स इथाइल एल्कोहल और एनहाइड्रस का मतलब होता है कि उसमें वाटर का अमाउंट बिल्कुल भी नहीं होगा. ये गैसोहॉल दोनों तरह के व्हीकल्स में, हैवी ड्यूटी और लाइट ड्यूटी व्हीकल्स दोनों में यूज़ कर सकते हैं. इथेनॉल में जो हम इथेनॉल यूज़ करते हैं गैसोहॉल प्रोडक्शन में, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को फर्मेंट करके बनाया जाता है. अब फर्मेंट क्या है, फर्मेंटेशन क्या है? आप सबने सुना होगा कि फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के थ्रू हम विनेगर बनाते हैं, यानी कि जिसे हम हिंदी में सिरका कहते हैं. करते क्या है, शुगर केन जूस या जामुन के जूस को हम एक यूटेंसिल में रख के उसको 2 से 3 महीने तक छोड़ देते हैं. उसके बाद उसमें जो ईस्ट होता है वो ईस्ट क्या करता है, उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है. तो उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर अल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा है फर्मेंटेशन से. फर्मेंटेशन किसका कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का. और फिर उस इथेनॉल को हम गैसोलीन में मिक्स करके यूज़ करते हैं एज अ गैसोहॉल. एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे गैसोहॉल के? गैसोहॉल बहुत ही चीप होता है और लो एमिशन फ्यूल होता है. लो एमिशन का मतलब है कि ये ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज नहीं करता. उसके साथ साथ इसकी वजह से परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा मिलती है जो भी व्हीकल में हम उसको यूज़ करते हैं. अब बात करते हैं CNG की, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ये बनती है नेचुरल गैस को कंप्रेस करके, जिसमें मेनली क्या प्रेजेंट होता है, मीथेन.
इसको हाई प्रेशर पर स्टोर किया जाता है और सिलेंडर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसको गैसोलीन की प्लेस पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब गैसोलीन का मतलब क्या है? पेट्रोल, डीजल या एलपीजी। उसके बाद इसको हम व्हीकल्स में भी यूज़ करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स का एमिशन इससे काफ़ी कम हो जाता है। और ये होता है मीथेन, जिसको हाई प्रेशर पर स्टोर किया जाता है। अब देखते हैं कि सीएनजी के एडवांटेजेस क्या है। सीएनजी गैसोलीन से चीपर होता है, उससे सस्ता होता है, एफिशिएंट भी होता है, पॉल्यूशन भी कम होता है और पूरी तरह से बर्न हो जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होंगे कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि इसकी एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। उसके साथ साथ जो माइलेज होती है वो माइलेज कम हो जाती है, इतना माइलेज हमें नहीं मिलता। उसके साथ साथ सिलेंडर्स में, क्योंकि ये भरा होता है तो सिलेंडर्स को रखने के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए व्हीकल्स में, और फायर एक्सीडेंट्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं अगर सिलेंडर से लीकेज होता है तो। सीएनजी स्टेशंस जो हैं वो सारे सिटीज़ में अवेलेबल नहीं हैं, और अगर कहीं अवेलेबल है तो उनकी एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, कुछ जगह ही प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एक अल्टरनेटिव फ्यूल है और इसको जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बनाया जा सकता है और इसको इंटरनल कंबशन इंजन्स में यूज़ किया जाता है। एडवांटेजेस क्या होंगे? ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और कोई भी हार्मफुल एमिशन नहीं प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन डोमेस्टिकली भी प्रोड्यूस किया जाता है बहुत सारे सोर्सेज से, और हाइड्रोजन इज़ रेडिली अवेलेबल क्योंकि एक बेसिक अर्थ एलिमेंट है और अबंडेंट है, लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है। डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे? ऐसे व्हीकल्स जो हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। हाइड्रोजन को स्टोर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशंस अवेलेबल हैं लेकिन बहुत ही लिमिटेड लोकेशंस पर अवेलेबल है। सो दैट्स ऑल अबाउट हाइड्रोजन, सीएनजी एंड गैसोहॉल। थैंक यू।